कुछ लोग होते हैं ना शौकिया फिल्म करते हैं कि मीन दे विल पुट यार आई जस्ट वांट टू पुट इट। कई लोग होते हैं, मतलब हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं जो सिर्फ नाम के लिए जी हमारा नाम डाल दो, हम पैसे दे देते हैं। जुबेन नौटियाल who was struggling with me कि सर मेरे सिंगल्स किया करो, आप एक ही सिंगल करते हो साल में। पीपल वर डिमांडिंग फॉर दिस सॉन्ग। ये एक लाइन गाता था, लोग पूरा गाना गा देते थे आगे। करेक्ट, ऐसा कुछ था तो एक शो तो हमने ऋतिक रोशन को रिक्वेस्ट करी और उसको करके किया, और वो गाना जब हमने सब या प्लेटफॉर्म्स को दिया तो दे स्टार्टेड टेकिंग अप, अरे यार ये तो हमारे लिए फिल्म गाने के तरीके, चलो ये ले लेते हैं। All right, Bhushan ji, congratulations for Lut Gaye clocking almost 300 million views. Now, my first question to you, sir, is that you have tremendous experience when it comes to music and independent music. Many would say that a dance number, for example, like a Patli Kamariya, is something that people take to immediately. But making a romantic song work, which is like a slow number work, is the tough part. And when you do the numbers, sort of numbers that Lut Gaye has done, that is a huge achievement. Do you agree with that, sir? Yeah, I agree to it a bit because according to me, nowadays the romantic, the mellow means it's called laid back romantic, means with that pathos and the romance in it. That kind of song with the brighter rhythm like Lut Gaye, because we have done earlier singles also with Zubain only, like Befa Tera Masoom Chehra, which is a super duper hit. मैं जिस दिन बुला दूं is a super duper hit. मेरी आशिकी पसंद आए, that's a super duper hit. All are romantic songs with that kind of romance in it, with that kind of pathos in it, but with the bright rhythm. So I will not agree to that point. It used to be before. Okay, if it is a dance number, it will catch on immediately, and the romantic number will take a lot of time. Now that's not happening. We have cracked that formula from during the lockdown, where when dancing numbers were not working big time, because dancing number works when people listen to those songs in a discotheque, in parties, in clubs, or while they're partying at home. But unfortunately, in lockdown, in the beginning of the lockdown, when we started making these non-film songs, that time the dance tracks were not working. So this romantic, bright romantic, with that kind of pathos feeling and great lyric kind of songs, got that space to enter the market, and we started the process with that, and we got one after the other hits with different artists, but most of them were with Zubain Nautiyal, who was struggling with me कि सर मेरे सिंगल्स किया करो, आप एक ही सिंगल करते हो साल में। तो इस बार इसके अभी this is his 12th single I guess in 1 year, which is, I don't think there is any singer in the recent past who has released his 12 singles in a year. It used to happen in 90s when my father used to do non-film songs. That time he used to release, उस टाइम सोनू निगम के वो 10-10 गाने रिलीज होते थे, मतलब 20-20 नहीं, एक्चुअली वो तो आई थिंक 40 गाने रिलीज होते थे साल में। तो उस तरीके का कुछ माहौल अभी बनना शुरू हुआ है, बिकॉज देयर वाज scarcity of music during the lockdown, because films were not coming, and नॉर्मली मीन्स हर जो भी हम फिल्म बनाते थे या हमारी रिलीज होती थी या हमारे पास म्यूजिक होता था, उसमें जुबेन का एक गाना तो होता ही था। तो वी ही यूज्ड टू वेट, मीन्स एज एन आर्टिस्ट, एंड वी आल्सो यूज्ड टू वेट कि यार फिल्म आएगी, देन आर आर्टिस्ट विल बी बिग इनफ, एंड सिंगल्स के लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता था। बट नाउ इन लॉकडाउन वी गॉट लॉट ऑफ टाइम, we did so many singles, we got so much big success, and the kind of numbers which we are getting for these kind of romantic songs, I'm not getting for my dance track, which are very attractive, which are catchy, which has a good dancer, heroine dancing to it. I'm not getting that kind of response to that. So everything has to be merged into the romantic and that kind of pathos zone. Like if you have seen, I recently did a song with Nora Fatehi and Parampara, which is called Chhod Denge. It's again a pathos song, but with that kind of dance and angst to it, and that kind of aggression in the song. That's also doing very, very well.
एक हमने किया था डांस ट्रैक which really did very well, that was नाच मेरी रानी, which is almost touching 500 million in less than 4 months, I guess, which is also a big thing. Again, that was a combination. We joined. If you'll see, it is not like a proper item song. It is a romantic kind of song with that kind of uh, dance beat. एक मिड टेम्पो की डांस बीट डाल के हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, एंड दैट आल्सो वर्क बिग टाइम. So overall, there is a combo which is working. But I would say what you asked, okay, romantic songs, a good romantic song with that kind of melody and that kind of song which can be hummed properly. Okay, if I'll make you listen, जैसे ही मैंने आपको गाना सुनाया, आप उस 2 बार सुनने के बाद आप जब करेंगे लुट गए, you are start humming it. So that's the beauty of it, and that's where our ears and our experience come into the picture, where we select that kind of song which people will start humming immediately. And that's the thing which that's why we are getting success one after the other, and most of them is with Zubain Notial, who is sitting next to me. आप भी बोलो कुछ. No, so Jubain, my question to you is, you are a natural when it comes to romantic songs, but do you think that it also requires a lot of belief of, say, someone like Bhushan Kumar to back a song like, say, Lut Gaya, for example, because since it is the rage right now, and to just visualize that, yes, even this song has a potential to cross 300 million or 500 million. Do you think it also requires courage and vision? Definitely, I think Bhushanji is much more involved with the entire process of the song, from when it comes to production, from when it comes to composition, to writing. Then it goes down a path when it is released and then promoted. And then after that point of time, when it starts getting its numbers, where it's getting the numbers from, how many people are listening. I think that is the kind of commitment Bhushanji has towards a song, to gauge his audience, to gauge the people that are listening to music that he's making. So definitely, कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट होता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं मैं अच्छा साउंड कर रहा हूँ इस गाने पे, नहीं, but he's confident. He's like, you just don't worry, just let me handle it. And those are the numbers that I'm probably known for today. So definitely it requires his belief and faith in the song. Right. Bhushan ji, कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले ये कहा जाता था कि इंडिया में जो म्यूजिक है दैट इज प्राइमरली फिल्म म्यूजिक, कि हमारे वहाँ जो नॉन फिल्म म्यूजिक है या जो पॉप म्यूजिक एक टाइम पे था वो सब उतना नहीं है. मे बी इट इज नॉट द कमर्शियली वायबल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर सेड. इट सीम्स दैट यू टुक इट अप एज अ चैलेंज, and the way you believed in a lot of your artists, I still remember the way Yo-Yo Honey Singh's songs came out were huge. Do you think you took it up as a challenge that not only you would revive non-film music in India, but you'll present it on a huge scale? That's what the only idea means, because earlier I still remember जब हम लोग सिंगल्स करने की सोचते थे तो हमें all these platforms, radio stations, television platform, everybody was so much into Bollywood music कि नहीं यार हमें एक्टर चाहिए, एक्टर का चेहरा चाहिए, एक्टर के विजुअल चाहिए, हम एक्टर के विजुअल के बिना इतना नहीं चलाएंगे, थोड़ा चला देंगे, आपके साथ रिलेशन है. I used to explain to them कि please judge a song with a song, not from the चेहरे से मत आप कीजिए कि ये मेरे को नॉन चेहरा मेरे को TRPs देगा तो इसीलिए मैं चलाऊंगा. मैंने कहा आई एक्सप्लेन्ड इट टू देम कि यार ये चीज आप मानो, बट ऑब्वियसली एक चीज जब एक चल रही होती है तो नोबडी वांट्स टू टेक दैट, किसी को वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना. लेकिन मुझे एक मार्केट नॉन फिल्म की डेवलप करनी थी. इनिशियली आई स्टार्टेड विद मींस टेकिंग वॉइसेस ऑफ माय सिंगर्स and merging it with the actors. That time I did the song with Hrithik Roshan, featuring Hrithik Roshan and Yo-Yo Honey Singh. Dheere. This time Yo-Yo Honey Singh was not well, and he definitely needed a song because he was not able to shoot on himself that time. तो हमने ऋतिक रोशन को रिक्वेस्ट करी और उसको करके किया, और वो गाना जब हमने सब यहाँ प्लेटफॉर्म्स को दिया तो दे स्टार्टेड टेकिंग अप. अरे यार ये तो हमारे लिए फिल्म गाने के तरीके, चलो ये ले लेते हैं. देन वी डिड अ सॉन्ग विद इमरान हाशमी,
That also they supported. It was a same song. It was not a film song. It was a non-film song only, which we made, and we just picturized it on Imran Hashmi that time. That "Main Rahun Ya Na Rahun." It was a Right. song by Amal. Aman and Amal. Hmm. Then we did a lot of songs with Tiger Shroff. Yes. That also did very well. वो भी बहुत supportive मिला. फिर उसके बाद obviously film music में ही लोग ज़्यादा वो रहते थे, and we used to do occasionally singles and all these stuff. But my dream was कि यार मुझे ये non film market को किसी तरीके भी ऐसा लाना है कि मेरे singers जो हैं उनके चेहरे भी popular हों. तो we used to do, जैसे हम जुबेन के साथ एक single करते थे साल में, क्योंकि बाकी टाइम पूरा फिल्म म्यूजिक खा जाता था, तो हम बोलते थे अच्छा वो फिल्म म्यूजिक और इसको मिक्स नहीं करते हम. और जब सारे प्लेटफॉर्म्स को जिनको हम देते हैं, और ऑडियंस भी, अगर सिर्फ ऑडियंस तो सुनना चाहती है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ही सपोर्ट नहीं देगा तो ऑडियंस तक पहुंचेंगे कैसे हम गाना लेके. तो मैंने बोला ठीक है, अब ये लोग चाहते ही फिल्म म्यूजिक है, तो हम अपने सिंगर्स को फिल्म म्यूजिक में ही प्लेबैक कराते हैं, और किसी किसी में उनका विजुअल शूट करके फिल्म विजुअल के साथ मिक्स करके डाल देंगे. बट वो भी बहुत ओकेजनली होता था, बिकॉज यू नो सम पीपल, सम ऑफ डायरेक्टर एग्री टू दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्रमोटिंग, some people don't agree. तो वो चीज चलती रही, हम लोग पुश करते रहे. देन लॉकडाउन के, देयर वाज नो बॉलीवुड म्यूजिक, सब बॉलीवुड म्यूजिक सब बंद हो गया. तो उस टाइम हमें था कि यार गाने तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम लॉकडाउन में, लोग घर पे तो बैठे हैं, लोग गाने तो सुनेंगे. एंड टुडे एवरीथिंग इज डिजिटल, नोबडी हैज टू गो टू द मार्केट एंड बाय अ सीडी और अ कैसेट. तो व्हाट टू डू, लेट्स मेक सिंगल्स. नाउ लेट्स प्रमोट आवर सिंगर्स, उनके हम वो बनाते हैं. तो उस टाइम हमने रिस्ट्रिक्शंस थी, तो गाने रिकॉर्ड घर पे होते हैं, घर पे बन के गाने आ गए. हमने होम वीडियोस करने शुरू किए. दर्शन रावल के साथ हमने होम वीडियो किया, नेहा कक्कड़ के साथ हमने होम वीडियो किया, टोनी कक्कड़ के साथ हमने होम वीडियो किया. वो गाने अच्छे चलने लग गए, क्योंकि उस टाइम कोई म्यूजिक ही नहीं था. एंड एवरीबडी स्टार्टेड सपोर्टिंग, रेडियो स्टेशन स्टार्टेड सपोर्टिंग, टीवी स्टार्टेड सपोर्टिंग, मीडिया स्टार्टेड सपोर्टिंग, क्योंकि देयर वाज नो अदर म्यूजिक. तो उनको पुराने गाने चलाने और साथ में नए गाने चाहिए, तो ये नॉन फिल्म ही मिल रहे थे. तो दे स्टार्टेड डूइंग दैट. और फिर हमने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमने गाने देने शुरू किए अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस. और फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला, जिसमें शूटिंग हो सकती थी, फिर हमने अपने सिंगर्स को शूट करना शुरू कर दिया. तो वी डिड लॉट ऑफ सिंगल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन. एंड आउट ऑफ दैट, मतलब हमने जो 50 से 60 मेजर बड़े वाले किए हैं, उसमें से हमारे 40-45 सुपर डुपर हिट हो गए, जिसमें से 12 के करीब तो जुबेन के साथ ही हुए. जो ये तरसता था कि मेरे साल में एक ही होता है, नाउ ही हैज गॉट सो मेनी कि सर अब थोड़ा रोक दो, बहुत ओवरडोज ना हो जाए. सो बट आई एम वेरी हैप्पी, दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ विजुअल एक रिकग्निशन मिल रहा है एक आर्टिस्ट को वॉइस के साथ. अदरवाइज एक आर्टिस्ट सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग वॉइस बन के रह जाता है, उसको ज्यादा लोग शक्ल से नहीं पहचान पाते. देयर आर सो मेनी सिंगर्स हु आर जस्ट प्लेबैक सिंगर, तो दे डोंट नो, पीपल नॉर्मल पब्लिक डोंट नो देम बाय फेस. जब वो नाम बताएंगे तब मालूम चलता है कि हाँ यार ये सिंगर है जो इतना पॉपुलर है. अदरवाइज आप विजुअल के बिना होता नहीं है. लेकिन अब बिकॉज ये लॉकडाउन में इतनी चीजें हुई, अब एक हैबिट बन गई है. आपके टेलीविजन चैनल की भी हैबिट बन गई है, वो भी उसको बहुत अच्छी टेलीविजन रोटेशन देते हैं. रेडियो स्टेशन वाले भी गाना चलाते हैं. स्ट्रीमिंग साइट्स पे भी फिल्म्स के बराबर में जाके ये उससे ज़्यादा ही प्लेसमेंट्स वगैरह सारी स्ट्रीमिंग साइट्स पे मिलती हैं. So otherwise it was everywhere. It was in Hangama also, it was in Sawan also, it was in everywhere. They used to give placement and everything to a film song. तो अभी बहुत अच्छा लगता है, सिंगर्स को भी बहुत बढ़िया लगता है कि यार हम प्रमोट हो रहे हैं, हमारा सिंगल है, उसके ऊपर हमारा फेस लगा हुआ है, और वो हर स्ट्रीमिंग साइट्स के ऊपर प्रमोशन में हमारा फेस ऊपर आ रहा है, और लोगों को पता चल रहा है कि यार ये मैं सिंगर हूँ और ये मेरा गाना है. Definitely. Now, जुबिन, आपके काफी गाने आपके ऊपर पिक्चराइज करे गए हैं. It is definitely a bigger responsibility as well. How satisfying is it when a song where you are being featured in the music video as well, you have sung it, there is the entire idea is maybe coming from your
mind or your experience? Because बहुत बार जो artists होते हैं वो अपने खुद के experiences को अपने गानों में भी बयान करते हैं. How satisfying is it when a song featuring you, sung by you, does great numbers? Songs sung by me doing great numbers. ये एक ऐसी थॉट थी. थोड़ा आप प्लीज आगे आ जाइए, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है जी. तो as far as playback singing is considered, playback का टेस्ट मुझे लग गया था काफी. प्लेबैक करने का काफी कुछ एक्सप्लोर करके एक्सपेरिमेंट कर रहा था. पर जब से सिंगल्स शुरू करे हैं मुझे ऐसा लगता है इट इज बीन मैसिवली हेल्पिंग माय प्लेबैक साइड ऑफ म्यूजिक एज वेल. जितने भी हम लोग सिंगल्स कर रहे हैं जहाँ पे फीचर हो रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली ये भूषण जी का ही विजन है. ये मतलब ही ड्यूरिंग द लॉकडाउन ही केप्ट पुशिंग मी कि यार ये सिंगल करना है, आपने ये करना है, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मी. वरना मैं शायद प्लेबैक की तरफ ज्यादा रह करके और फिर कुछ बीच में सिंगल्स करता. अभी एक्टिंग की तरफ ले जा रहे हैं मुझे. उसमें एक्टिंग करवाते हैं काफी और मेहनत करते हैं हम लोग उसमें काफी. हर आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है एक इंडिपेंडेंट स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि दैट इज योर लॉन्ग टर्म क्रेडिट. जब आपका जो इंडिपेंडेंट स्पेस रहेगा. एक 90s का टाइम था जब एल्बम्स वर पीकिंग एंड शायद वही एक टाइम था जिस वक्त आई ग्रू अप. मेरा कॉलेज चल रहा था उस वक्त. तो आई हैव बीन वेरी वेल वर्स्ड विद दैट होल इंडिपेंडेंट स्पेस वेयर सिंगर्स आते हैं और अपनी म्यूजिक वीडियोस करते हैं और फिर लोगों का सिर्फ उनके गाने से नहीं उनकी जर्नी से भी अटैचमेंट होता है. सो दैट हैज स्टार्टेड हैपनिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जब भूषण जी ने इतने सारे सिंगल्स मेरे से करे. तो yes, I think we are creating a time together जो eventually which will be very very good for the entire independent music scene. Faridu, on that, I would like to add, कि अभी last 1 year में I think he is the only singer who has got the fastest streams across all the streaming sites, which is a very very big achievement. इतने गाने आके जितनी तेजी से गाने के स्ट्रीम्स हो रहे हैं, 80 million 90 million on one streaming site in less than 1 year, which is huge. So highest number of streams also he has got, which I'm very proud ke T-Series singer has got this kind of numbers, which are very very big. Whether it's YouTube में 1 billion से ऊपर within last 7-8 months में billion से ऊपर views हैं और plus streams भी billion के ऊपर ही streams, which is very very big. No, absolutely. ये I don't think इसके पूरे जब से इसने अपना कैरियर शुरू किया तब से उतनी चीजें नहीं हुई जो पिछले 1 साल में हुई. No, I think that is amazing. भूषण जी, जैसे आपने कहा कि टी सीरीज के आर्टिस्ट आपने एड्रेस किया ना. भूषण जी, बहुत बार हमने ये सुना है आपके काफी म्यूजिशियन से, म्यूजिक डायरेक्टर से, सिंगर से आपका जो इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से गानों में रहता है कि दैट many a times the songs are your concept. You are part of the entire the way they are being made in terms of the music, and even so Nora told me that Bhushan ji called me up and that ये गाना एक है जैसे हम छोड़ देंगे बारे में आपने बताया और ये तुम एक बार सुन लो और ये तुम्हें करना है that way. So even the music video, everything, many a times your contribution tends to be massive. Now जब आप देखते हैं कि वही गाने चाहे वो फिल्म के हों या फिर नॉन फिल्म गाने हों वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, उसके बाद सिंगर्स दुनिया भर में शोज करते हैं और वो गानों को वो परफॉर्म करते हैं और उसके बाद ऑडियंस रिएक्ट करती है, उनको सर्टेन तरीके से रिस्पॉन्ड करती है. मे बी आपने भी लाइव शो सर्टेन देखे होंगे. क्या आपके जहन में आता है कि यार ये गाना किस तरीके से हम लोगों ने पूरा प्लान किया था, कंसेप्चुलाइज किया था और आज इसको ऑडियंस जो है वो लाइव ऑडियंस इस तरीके से मोहब्बत दे रही है और इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रही है? What sort of a feeling is that for you, sir? That's a very very good feeling, and that's not new. That has from last so many years, like from first Tumbin and first Divana album, I am involved. Of course. The way I am involved today. That time तो means I was too involved. अभी तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं तो इसलिए एक गिटार का पीस कैसा बजा वो देखना भूल जाता हूँ बस. तो वो थोड़ा रन थ्रू हो जाता है. Otherwise, from beginning, I wanted to train myself. क्योंकि मैं उस टाइम सीख रहा था, क्योंकि नया ज्वाइन किया था.
कि हर चीज़ मुझे मालूम होनी चाहिए कि एक गाने के अंदर लिरिक्स माइंड ब्लोइंग होने चाहिए, हमेबल होने चाहिए, ट्यून बहुत माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, जो बिगनिंग इंट्रो आएगा, M1 म्यूजिक 1 का पीस होगा या आखिरी में कोई कोड़ा टाइप आएगा या किस तरीके का आउट्रो होगा, उन सब में जो चीज़ गिटार बजनी चाहिए या मैंडोलियन बजना चाहिए या सितार बजना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखता था। आज भी देखता हूँ, जैसे आज हमारा अभी गाना आने वाला है फ़िल्म में सत्यमेव जयते में, जिसमें मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने रोचक को बोला, मैंने रोचक इसमें माउथ ऑर्गन से शुरू करा है, बहुत टाइम से किसी ने माउथ ऑर्गन नहीं सुना, तो उसने माउथ ऑर्गन से शूट किया। फिर मिलाप जवेरी, यू नो, ही इज वेरी मासी पर्सन, तो उसने बोला सर माउथ ऑर्गन है तो मैं जॉन से माउथ ऑर्गन से ही शुरू करवाता हूँ। वेरी गुड, कराओ। तो उसने माउथ ऑर्गन से ही वो गाना शुरू किया। तो इस सो यस, आई गेट वेरी मीन्स हैप्पी। एक गाने की, हर गाने की एक जर्नी होती है। लाइक इवन लुट गए, व्हेन वी वर मेकिंग द सॉन्ग, मीन्स आज सिंगर को मैं देता हूँ, सिंगर गाता है और अगर उसको शूट करना होता है तो आगे शूट करता है, और अगर कोई अपना इंटरव्यू तो देता है, बट उससे पहले की जो जर्नी होती है वो सिंगर को भी मालूम नहीं होती है। मैं तो जुबेन को भी नहीं मालूम है कि लुट गए के कितनी बार मैंने उसका उसके लिरिक्स चेंज करवाए, कितनी बार उसका मैंने पहले 2 अंतरे थे, 2 अंतरे की जगह मैंने बोला 1 अंतरा रखते हैं, एक आउटरो बनाते हैं। तो वो मेरे सब गानों में वैसे होता है, कहीं म्यूजिक पीस बजाना है, कहीं हारमोनियम बजाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग, मैं और ये म्यूजिक कंपोजर्स जो भी उस गाने में इन्वॉल्व होता है, तो वी डू इट एज अ प्रोसेस। एंड जब वो पूरी मेहनत से और उस सोच से कि यार ये दुनिया को पसंद आएगा, तो दैट्स व्हाई आई से, मींस आई प्राउडली से कि मींस के मेरे ईयर्स जो हैं वो पब्लिक टेस्ट के हिसाब से बने। आई नेवर मेक अ सॉन्ग विद माय टेस्ट, आई ऑलवेज मेक अ सॉन्ग विद माय पब्लिक का टेस्ट के साथ। ये मैंने पहले भी आपको कभी जवाब में दिया होगा ये चीज, जी। द वे वी मेक द सॉन्ग। एंड ऑब्वियसली व्हेन वो गाना जाके लोग परफॉर्म करते हैं और उसके ऊपर इतना, मतलब बहुत बार हुआ है अरिजीत सिंह के साथ, मैंने इतनी बार मैंने उसको गाना बोला यार गाना गाओ ये, तो वो कहता नहीं सर मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम गाओ। सूरज डूबा एक गाना था, सूरज डूबा है, ऑफ कोर्स। वो बोला तो सर ठीक है आपको लगता है बड़ा गाना है, मैंने कहा बहुत बड़ा गाना है, और उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो सनम रे था, सनम रे बोला था सर ठीक है अच्छा गाना है, बट आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा होगा? मैंने कहा ये बहुत बड़ा होगा। अगेन ही गॉट ऑल द अवार्ड्स फॉर दैट। सो और एवरीवेयर ही परफॉर्म विद दैट सॉन्ग। देन देयर वाज वन सॉन्ग, क्रीचर में एक गाना था, कौन सा था वो? टोनी कक्कड़ का पहला गाना था जो मैंने उसको ब्रेक दिया था, बहुत बढ़िया गाना था एक, तो वो भी वो हर शो में गाता है। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि जो एक प्रोसेस से गाने बनते हैं और जब वो परफॉर्म होते हैं तो क्यों, फिर बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यार जो हमने कन्विक्शन सोची थी और जिस कन्विक्शन से गाना बनाया था, वो गाने ने नंबर्स भी किए, स्ट्रीम्स भी हुआ, यूट्यूब पे भी चला, और वो शो में उसकी सामने से डिमांड आती है। अगर कोई सिंगर गाता नहीं है तो उसकी डिमांड आती है। यही गाना एक था ये जो अरिजीत ने भी गाया अपना कबीर सिंह में, और इसने भी जुबेन ने भी एक वर्जन गाया, कौन सा अपना, तुझे कितना चाहने लगे हम का वर्जन, जो आज हंगामा की साइट पे या सावन पे सब मिला मिलू के कुछ 1 बिलियन स्ट्रीम्स है, 1 बिलियन स्ट्रीम, विच इज ह्यूज। दैट इज सच अ बिग सॉन्ग। मींस ये भी मतलब हर वर्जन, उसका मेल वर्जन का इतना है, उसका अनप्लग वर्जन इतना है, उसका जुबेन वर्जन इतना बड़ा है, all things are big, and that is also a song which had a very big process. Nobody wanted to put that song in the film. I was fighting for it. उसका एक अरेंजमेंट था, उन्होंने बोला अरेंजमेंट चेंज करो तब हम फिल्म में फिट होएगा, तो मैंने कहा मैं अरेंजमेंट चेंज करता हूँ लेकिन ये गाना तो फिल्म में आना ही चाहिए। मतलब आई डोंट वांट टू नेम, बट एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट दैट सॉन्ग, लेकिन मैंने वो पुश करके गाना डलवाया, फिल्म में डलवाया, और उसके उसको 2 सिंगरों से उसके दो अलग अलग वर्जन थे। तो एक फिल्म वर्जन था और एक एल्बम वर्जन था। हमने दोनों वर्जन गवाए, एक अरिजीत से और एक जुबेन से, और दोनों आज के दिन में हिस्टोरिक गाने हैं। और आई डोंट थिंक कोई भी शो में उसके बाद इसको उसके बिना मतलब कोई मानता नहीं होगा हर जगह, क्योंकि मैंने एक शो में इसका क्लिप भी देखा जिसमें पीपल वर डिमांडिंग फॉर दिस सॉन्ग। ये एक लाइन गाता था, लोग पूरा गाना गा देते थे आगे। करेक्ट, ऐसा कुछ आता है एक शो।
सो हर वो प्रोसेस होता है और इससे बहुत खुशी होती है और एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, थ्रू आउट लोगों को शोज में इसमें बहुत पसंद आते हैं गाने, तो यू गेट दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, फिर उससे आप और हिट गाने बनाते हैं। तो जैसे मैंने ये पहले गाने बनाए और हिट हुए, तो हमने फिर लुट गए बनाया, और अब लुट गए के बाद एक और गाना है जो इसी कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं, जिसमें इमरान हाशमी भी होंगे, जुबेन भी होगा, सब लोग होंगे, और वो भी एक बना रहे हैं। हालांकि उससे पहले इसके 2-3 और सिंगल्स आ रहे हैं which are also huge. So yes, this is it. Okay, and Bhushan ji, you also displayed a lot of vision when it comes to cinema halls right now. Yeah. जो आपने एक कमिटमेंट आपने जो सिनेमा हॉल्स की तरफ आपने दिखाया है, और ये बहुत बड़ा आपका स्टेटमेंट है कि आज के टाइम पे अगर 2.5 करोड़ भी अगर फिल्म कर रही है तो मैं उसको 20 करोड़ मानूंगा। बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई थिंक द सिनेमा हॉल्स बैडली नीडेड सपोर्ट, be it Ruhi, be it Mumbai Saga, 2 more of your films, they're coming up in cinema halls. Why was it so important for you to make sure that you take those chances and go ahead? See, I'm a long-term player. See, I'm doing many films. कुछ लोग होते हैं ना, शौकिया फिल्म करते हैं कि they will put यार I just want to put it. कई लोग होते हैं, मतलब हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं जो सिर्फ नाम के लिए, जी हमारा नाम डाल दो, हम पैसे दे देते हैं। We are not doing that. We are a regular film producer now. And earlier it was, earlier मैं भूल भुलैया बनाई थी 13 साल पहले, और लक्की बनाई थी, वो हम शौकिया बनाते थे, क्या चलो म्यूजिक बना रहे हैं तो एक फिल्म भी 2-3 बना लेते हैं, तो हम सब उस टाइम शौकिया करते थे। तो उस टाइम मैं ऐसा रिस्क लेता नहीं, मैं बोलता है मुझे प्रॉफिट हो गया और मैं निकल जाता हूँ करके कर लेता हूँ। लेकिन आज वी हैव टू सी डिफरेंटली, we have to see with a different angle, and especially me as T series who is making 30 to 35 films in coming 1-2 years, he has to definitely, we need support of the theaters. OTT is a very good platform that also gives you a very big reach, but you can't neglect or leave theater aside because of OTT के लिए हम डायरेक्ट टू OTT भी बहुत फिल्में बना रहे हैं, और कुछ फिल्में हैं जो हमने डायरेक्ट टू OTT रिलीज की भी और अभी कर भी रहे हैं, लेकिन सम फिल्म्स आर देयर व्हिच हैज टू कम टू थिएटर, एंड प्लस एट द सेम टाइम इस बार हमने क्या सोचा है कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि यार हमने 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, 4 फिल्म दी, OTT पे दी, हमने अपना एक रीजनेबल प्रॉफिट कमा लिया, जो हम थिएटर से कमाते थे, हमें रिस्क लगा, हमने वहां से कमा लिया, लेकिन जो फिल्में थिएटर में जा सकती हैं, अगर उसमें भी हम ये वाला रूट ले लेंगे कि हम OTT को देके अपना थोड़ा पैसा सेव करके बिना रिस्क के निकल जाते हैं, वो मैंने सोचा ये लॉन्ग रन के लिए अगर कोई भी नहीं करेगा, हर बंदा सोचता रहेगा यार कि मैं क्यों करूं, नुकसान हो जाएगा, थिएटर में लोग नहीं आएंगे। अरे आप कुछ दे दोगे तो लोग आना शुरू होंगे ना। तो मैंने ये सोचा यार कि फॉरगेट, थिंक लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि एक पिक्चर में लॉस कर लेंगे, 10 करोड़ 12 करोड़ का लॉस होगा, कोई भी फिल्म जो मैं रिलीज करूंगा, बड़ी फिल्म है मुंबई सागा, उसमें 10 करोड़ का लॉस हो जाएगा, और साइना करूंगा उसमें 2-3-4 करोड़ का लॉस हो जाएगा। let me invest this 20-30 crores into by bringing films into the theaters and get that kind of habit back. So that was my perspective कि यार पैसा हम इतना कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपने ट्रेड में जो जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब फिल्मों के लिए, फिल्मों की पॉपुलैरिटी के लिए, एक्टर्स की पॉपुलैरिटी के लिए हम इतने नए न्यू कमर्स को भी पुश करते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल वी आर वर्किंग विद, दैट थिंग इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन फॉर द म्यूजिक पॉपुलर करने के लिए आपको थिएटर में लोगों का जाना, इंजॉय करना, एक पार्टी मोड में जाना, और फिर वहां से निकल के इमीडिएटली गाने सुनना, वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना, वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए OTT, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू OTT, लेकिन OTT पे क्या होता है, आप पूरी पिक्चर एक साथ नहीं देखेंगे, आप 30 मिनट्स देखेंगे, फिर ब्रेक लेके कहीं चले जाएंगे, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट पूरा रहता नहीं है। थिएटर में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रहता है, आप इंटरटेनमेंट के लिए गए हैं, आप बाहर निकल के आपके दिमाग में गाने घूमते रहते हैं। यहाँ आप फॉरवर्ड कर सकते हैं गाने कि चलो यार मेरे को जल्दी देखनी है तो मैं फिल्म देख लेता हूँ, गाने फॉरवर्ड कर लूंगा, बाद में यूट्यूब में देख लूंगा। लेकिन बाद में देखने के लिए किसको याद रहता है? कोई गाना याद रहेगा, कोई गाना याद नहीं रहेगा। तो इससे म्यूजिक का भी नुकसान हो रहा है, जो मेरा ही म्यूजिक कंपनी है, तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स थे। तो इसलिए हमने सोचा है लेट्स स्टार्ट कि हम एक अटेम्प्ट करते हैं और
थिएटर में फिल्म्स लेके आते हैं. It's and that's why I requested media also कि please don't judge the film with the numbers कि भैया कि इसकी जॉन अब्राहम की सत्यम विजयते ने 20 करोड़ की ओपनिंग दी थी छुट्टी वाले दिन. ये चलो छुट्टी नहीं है तो कम से कम 10 की तो ले, लेकिन 10 की मार्केट आज नहीं है. यहाँ आपका गुजरात में लॉकडाउन है, आपका नाइट कर्फ्यूज है, आपका इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं लोगों के जाने में. हर रोज इतनी अफवाहें भी आती हैं कि यहाँ जाने के लिए ये टेस्ट कराओ, यहाँ वहाँ जाने के लिए ये टेस्ट कराओ. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन एंड प्लस देयर इज अ स्कैरसिटी. मतलब आज आज लोग स्केयर तो हैं ही, लोग डरे तो हुए ही हैं, और इतना तेजी से महाराष्ट्र में ये चीज़ फैल भी रही है, तो प्रिकॉशंस भी लोगों को लेनी है. सब कुछ कर मद्देनजर रखते हुए फिर भी विद फुल सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से 50% कैपेसिटी के हिसाब से हमने ये फिल्म रिलीज करी ताकि लोगों की कुछ आदत बने. जैसे साउथ में लोग जा रहे हैं 100% कैपेसिटी में जा रहे हैं और हर फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, न्यू कमर्स फिल्म भी कर रही है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती. यहाँ भी मूवी लवर्स हैं, फिल्म लोग देखना चाहते हैं. तो हमारा सोच यही थी कि हम दिखाएंगे कुछ चीज तब लोग आएंगे, अदरवाइज लोग आएंगे हम ये सोचते रहेंगे आएंगे आएंगे, अरे लेकिन दिखाओगे कब, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी. तो वी हैव स्टार्टेड, तो हमने किया है. अब अगर मेरा ये 20 करोड़ का भी बिजनेस होगा, 15 करोड़ का भी होगा, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि मुझे लॉस हो रहा है. आई मेट जॉन ऑल्सो yesterday and I told him the same thing. He was telling me, Gushan, our film is, we are affected by a tsunami, this, that. I go, forget about everything. What we have done for the industry, for the theaters, for our community, that is commendable, I guess. And that's what everybody is telling us today कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है कि एक शुरुआत करी है. तो दैट वाज द मेन लॉजिक बिहाइंड इट. एंड आई एम डूइंग फर्दर. मेरी 2-3 फिल्में और हैं जो अभी हम 3-4 फिल्में हमारी लाइंड अप हैं, और हमने अभी पूरे साल में तो स्लेट भी अनाउंस की है आपके पास, जी जी, जिसमें बहुत जी. सारी we'll come to the slate shortly, sir. But जब आपकी एक फिल्म आ रही है कोई जाने ना, आमिर खान उसमें एक गाने में नजर आ रहे हैं, अरफन मौला में. When someone like Amir Khan becomes a part of a music video, and बहुत ही rarely ऐसा होता है कि आमिर कोई सपोर्टिंग रोल या फिर म्यूजिक वीडियो में किसी भी फिल्म में नजर आए हो अपने पूरे करियर में. He has been very very choosy. उसके बाद फिल्म भी उन्होंने देखी और मीडिया से बात करी जो और फिल्म की बहुत तारीफ करी है. कितना कितना हेल्प होता है कि एक सुपरस्टार अगर इस तरीके से फिल्म को सपोर्ट करता है. How much, and because that song has to be a big screen experience. वो आप उसको छोटे पर्दे पे मतलब मोबाइल पे आप उतना एंजॉय नहीं कर सकते जितना कि आप उसको थिएटर में एंजॉय करें. How helpful is that for you as a... Obviously, Amir sir has one kind of persona. उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उनकी एक रीच है, उनकी एक ऑडियंस है जो डेफिनेटली उनके गाने की, उनकी फिल्मों की, सब चीज़ों को हिट करती है. एंड इट्स वेरी, मैंने अभी पूरी फिल्म देखनी है. आई वाज नॉट एबल टू सी, आई वाज ट्रैवलिंग, बट आमिर सर ने देखी एंड ही रियली रियली लाइक the way it has. Again, it doesn't have the biggest stars who are our main lead and main actresses, but they are very good performers. They have done a very good job. That's what Amir sir also saw the film and said कि बहुत अच्छा काम किया सब और बहुत अच्छी फिल्म बनाई. अब obviously वो audience, वो न्यू कमर को लेके या आमिर सर के गाने को लेके जितना अट्रैक्ट होके लोग अंदर घुसे, और एक तो माहौल ऐसा है डर का, प्लस चेहरे हैं जो बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं, लेकिन आमिर खान का सपोर्ट, आमिर सर का सपोर्ट आने से फर्क तो पड़ता ही है. मतलब 100% पड़ना ही चाहिए. तो लोग थिएटर में देखने वो गाना जाएंगे, वो गाना भी और पॉपुलर तभी होगा, और पॉपुलर होगा भी जितना है उससे डबल पॉपुलर होगा जब लोग थिएटर में देखेंगे, क्योंकि लोग फिल्म के गाने थिएटर में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं. दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको बोला ना, फिल्में थिएटर में जाना बहुत जरूरी है. तो Absolutely, and ये नहीं देखना चाहिए कि फिल्म कितना बिजनेस करेगी. अभी जो जी जी, सारी जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह होती थी, नंबर गेम पे चलते थे, और इतना इसने मार दिया, इसने इतना मार दिया, इसने पहले इतना मारा था अब इतना मार दिया, वो सब अभी एकदम नहीं करना चाहिए. अभी मींस मीडिया शुड इनकरेज अस बिकॉज वी आर डूइंग फॉर एवरीबडी. आप भी मीडिया में बॉलीवुड को कवर करते हैं मैक्सिमम, हम भी बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं, थिएटर भी बॉलीवुड से कनेक्टेड है. वी ऑल हैव टू वर्क एज अ टीम एंड मेक दिस अ बिग सक्सेस. absolutely, sir.
सर, गुलशन जी की बायोपिक के बारे में अगर प्लीज आप बताना चाहें. Amir is part of it. Yeah, he's a part of it. He himself announced it. But अभी because उनकी लाल सिंह की ही शूटिंग चल रही है और अभी वो फिल्म रिलीज होनी है. But definitely we will be tentatively हम लोग फिल्म को 2022 में शुरू करेंगे. अभी एग्जैक्ट डेट नहीं, अभी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन yes, the 2022 is the film which should go on floor, and we should look at 2023 release or 2022 end release or something like that. Okay, and so writing will be very crucial. I think writing is crucial for any film. And I'm sure that आप बहुत ज़्यादा उसमें involved होंगे उसकी writing में भी. What sort of experience is it for you, sir? It's a very good experience, especially in Mughal, because it's my father's biopic. Writing तो उसकी बहुत टाइम पहले से ही complete है, क्योंकि हम फिल्म अभी शुरू करने वाले थे, लेकिन वो अब लॉकडाउन की वजह से पूरी फिल्म एक साल डिले हो गई. Yes, writing में तो involve होना ही पड़ता है, because that is the crux of it. Today we are making so many films, and writing is the most important thing, and then comes the direction and everything. पहले आपका material correct होना चाहिए, जिसको करेक्ट डायरेक्टर जाके करेक्ट तरीके से डायरेक्ट कर सके. तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, आई एंजॉय द प्रोसेस. थोड़ा टाइम कंस्ट्रेन होने की वजह से आई एम नॉट एबल टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल द थिंग्स, इसलिए थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन आई एम गेटिंग यूज टू इट. बट इन ऑब्वियसली इन बिग फिल्म्स एंड प्लस इम्पॉर्टेंट फिल्म्स, आई टोटली गेट इनटू इन्वॉल्व इनटू द स्क्रिप्ट सेशंस आल्सो. Definitely. Okay, and Jubin, मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था, आपने कहा है कि that आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत important हो गया है in terms of dissemination of music. Tell us something about your experiences. मैं अब एक्चुअली एक्टिव हो रहा हूँ सोशल मीडिया में. इससे पहले हल्का फुल्का ही जोर था. सोशल मीडिया ने तो खैर नया रास्ता बना दिया है. मुझे लगता है वो वक्त था जब सीडीज और कैसेट्स होते थे. अभी सोशल मीडिया हैज ओपन मार्केट फॉर so many people in so many ways. Different artists from all over the world are using social media to distribute music, reach out to their fans, get really genuine reviews about it. So I think social media is the future, and it is just going to get stronger and bigger now. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे 1.3 बिलियन लोग हैं. हर इंसान आज के डेट में, पहले सोशल मीडिया की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, बट अब सोशल मीडिया की बहुत पेनिट्रेशन हो गई टू प्रमोट एनीथिंग, टू रिलीज एनीथिंग. एंड जैसे जैसे ये पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वी विल गेट बिगर नंबर्स, वी विल गेट मोर रीच, वी विल गेट टू टच मोर फैंस. एंड भूषण जी, आखिरी सवाल आपसे. अगर अपनी आने वाली स्लेट के बारे में, फिल्म्स के बारे में अगर प्लीज आप कुछ बताना चाहें. सी आने वाली फिल्म अभी नेक्स्ट इज साइना रिलीज हो रही है, कोई जाने ना रिलीज हो रही है. देन वी हैव सत्यमेव जयते. देन वी हैव झुंड विद अमित जी. देन वी हैव चंडीगढ़ करे आशिकी विद आयुष्मान खुराना एंड गट्टू. एंड देन वी हैव अतरंगी रे with Akshay Kumar and Dhanush and Sara and Anand Rai ji. Then we have a couple of films which are coming on OTT. Asin Dilruba is coming on OTT, and Sardar and Grandson of Arjun Kapoor and John, and with Nikhil Advani. That's coming on OTT. So ऐसे बहुत फिल्में हैं. भूल भुलैया will be coming this year. Right. अभी तो हमारे एक्टर को कोरोना हो गया, थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन बट यस, वी विल बी गेटिंग बैक टू द शूट सून एंड विल डेफिनेटली कैच द डेट ऑफ नवंबर दिस ईयर. एंड अभी जो शूटिंग पे जा रही हैं वो आपको मालूम ही होगा, आदि चल रही है. जी जी जी. प्लस लव रंजन और रणबीर कपूर वाली और श्रद्धा कपूर वाली, दैट इज हैपनिंग. उसकी शूटिंग हो चुकी है काफी, और अभी वापस शूट शुरू होने वाली है. देन वी विल बी स्टार्टिंग एनिमल with Ranbir Kapoor and Sandeep Vanga, Kabir Singh director. That will be starting by October, जब ये खत्म हो जाएगी अपना रणबीर वाली, हमारी लव रंजन वाली. और आदि पुरुष is full on in full swing. That's a huge one. नहीं, डेफिनेटली. मेरा सवाल आपसे आदि पुरुष से रिलेटेड था. जिस तरीके की क्यूरियोसिटी लोगों की आ रही है प्रभास की नेक्स्ट फिल्म में. Sunny Singh is there as well, Kriti Sanon is there as well, Saif Ali Khan of course. So how excited are you?
सी वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक वो उस फिल्म में एक डिवोशनल कनेक्ट है बिकॉज ऑल सडन वी आर मेकिंग अ रामायण जो जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रामायण के कैरेक्टर्स हैं और उसी इरा में है और वही चीज़ हो रही है जो रामायण की है मतलब इट्स रामायण ओनली बट इट्स अ डिफरेंट टेक मतलब बहुत ही रियल तरीके से वो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता तो इट्स अ वेरी बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेके जिस रियलिज्म पे वो बन रही है विद दैट काइंड ऑफ इफेक्ट्स विच हमारे इंडियन सिनेमा में लोगों ने देखे नहीं होंगे तो उस तरीके की जो वॉर सीक्वेंस वगैरह बन रहे हैं दे आर very very well like Om Rawat is highly talented director he's super the kind of thing he's doing he has shown us his talent in Tanaji now he's gone way up ahead of that in terms of VFX in terms of everything story तो obviously iconic है उसको आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं मुझे कोई बोले कि यार आपकी ये फिल्म से कंपेयर मैं वो कैसे कर सकता हूँ रामायण को मैं किससे कंपेयर करूँ सो आई कांट कंपेयर रामायण विद एनी ऑफ आर फिल्म और एनी ऑफ द इंडस्ट्री फिल्म और एनीथिंग सो दैट इज द बेस्ट थिंग which means my father also will be proud of me today because he was so close to devotion he used to make so many devotional he has made so many devotional movies in his time Jai देवी शिव जी के ऊपर चार धाम सो मेनी थिंग्स ही हैज मेड मतलब बहुत सारी फिल्में हमने बनाई हुई हैं जो आज भी लोग खरीदते हैं इतनी श्रद्धा से सो द रामायण with this kind of take with this kind of star cast with this kind of direction VFX that kind of action sequence with full of emotions and that kind of songs I think it will be very very different experience when it comes to theaters in August next year. We have announced the date of 12th August, I guess, 2022. That's Raksha Bandhan. Definitely. So, Bhushan ji, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much for just sharing so many amazing insights. It's truly been a wonderful experience listening to you. And thank you very much, Jubin, and congratulations. You've been creating records, and I hope that you continue making many more records of singles and movie songs. So thank you very much, and all the best wishes, sir. Thank you so much.